collective impact. Develop a global network of universities to work on disaster issues. Utilize the opportunities provided by social media and mobile technologies to transform disaster response. New apps for disaster risk management need to be developed. Build on local capacity and initiative. Communities' capacities need to be built to identify local risk reduction measures and create opportunities for local development. Ensure that the opportunity to learn from a disaster is not wasted. A visual system of learning needs to be created at the national and international level. Bring about greater cohesion in international response to disasters. Post-disaster relief should be channelized under one umbrella to build collective strength and solidarity. आपदा प्रबंधन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इसकी पूरी साइकिल तैयारी से शुरू करके रिस्पांस, रिकवरी और रिस्क रिडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। एनपी, डीआरआर सभी पार्टनर के अनुभवों को बांटने, एक दूसरे से सीखने और आपदा के मुद्दों पर समाज के सभी वर्गों की क्षमताओं को इकट्ठा करने का यह एक अनूठा मंच है। आपदा प्रबंधन महाविचार, पूरा भारत भागीदार। इसरो नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी NDEM के वर्जन 3 की शुरुआत कर रहा है ताकि आपदा प्रबंधकों की तैयारी पुख्ता हो सके, इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग का प्रबंधन हो सके। पहले के वर्जन 1 और वर्जन 2 के बाद अब मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी एंड हाई क्वालिटी वेक्टर रेंडरिंग वाला वर्जन 3 डेवलप किया गया है, जिसमें डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट्स इन डैशबोर्ड, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एनहांस जियोस्पेशियल डेटाबेस services, decision support tools, interaction tools, live audio visual modules, resource management and mobile apps इत्यादि मौजूद हैं। हम रिस्पेक्टेड श्री AS किरण कुमार, चेयरमैन स्पेस कमीशन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय गृह मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि कृपया NDEM वर्जन 3 को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें और रिस्पेक्टेड श्री किरण कुमार से आग्रह है कि कृपया माननीय गृह मंत्री जी को रिमोट सौंपें। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया NDEM वर्जन 3 के ब्रोशर का भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें माननीय। NDEM वर्जन 3 का ब्रोशर माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिसका विमोचन किया गया। धन्यवाद माननीय। अब हम रिस्पेक्टेड श्री AS किरण कुमार से अनुरोध करते हैं कि कृपया NDEM वर्जन 3 के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। Good morning to all of you, Honorable Minister of Home Affairs and all the dignitaries on the dais and off the dais. ISRO has been enabling implementation of national database for emergency management in close association with Ministry of Home Affairs for enabling disaster managers in decision making for management of disasters. Towards this, NRSC ISRO had designed and developed NDEM version 1 in 2013, and now it has been moved to NDEM version 3. And the presently launched NDEM version is compatible for all computer devices and mobile phones, besides improved visualization of data and services. The important modules in the vision are the dashboard for visualization of disaster alerts, warnings issued by nodal departments, current disaster news, authorized social media content, incident reporting through web and mobile apps,
integrated visualization of multi-scale data services, customized decision support tools such as proximity and optimal path analysis, report generation for relief management, live audio-video module for visualization of on-site response operations, resource management module for allocation of monitoring of relief resources. I am sure that the NDM portal will make effective the management of disasters, and I request Ministry of Home Affairs to ensure that the state and central departments make use of the products and services effectively for building a safer India. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद रिस्पेक्ट श्री किरण कुमार। एग्जीबिशन में इसका स्टॉल भी है, अगर कोई भी डेलीगेट इसे डिटेल में अगर जानना चाहता है तो वहाँ पर जाकर जानकारी हासिल कर सकता है कार्यक्रम के बाद। हम भारतीयों का ये परम सौभाग्य है कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी जैसे अत्यंत गरिमामय प्रशासन और राजनीति के लंबे अनुभव वाले प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व इस देश के गृह मंत्री हैं। हमारी आपसे विनम्र अनुनय है माननीय कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें, हमें संबोधित करें। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, भारत सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे गृह राज्य मंत्री जो विशेष रूप से इस डिजास्टर मैनेजमेंट का काम संभालते हैं गृह मंत्रालय में, श्री किरण रिजिजू जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्र जी, गृह सचिव श्री राजू जी महर्षि, सदस्य एनडीएमए श्री आर.के. जैन, एडिशनल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन श्री विपिन मलिक, विभिन्न राज्यों से आए सभी सम्मानित मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को यह जानकारी है कि आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय मंच नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की यह दूसरी बैठक हो रही है और इस दूसरी बैठक में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत विश्व के आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। हमारी लगभग 50% से अधिक आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। आपदाओं से होने वाले जान माल की क्षति को प्रभावी तरीके से कम करने के लिए भारत सरकार ने एक मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल प्लेटफॉर्म का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक वर्ष 2013 में हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लोगों ने भाग लेकर अपना सार्थक योगदान दिया था। इस नेशनल प्लेटफॉर्म के गठन का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए देश के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करना था। साथ ही साथ समय समय पर उठाए गए कदमों का रिव्यू करना एवं राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना रहा है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में हम कैसे सक्षम हों, इस पर चर्चा करना तथा प्रभावी रूप से काम करने के लिए आगे की रणनीति तय करना है। आपको याद होगा कि वर्ष 2015 में विश्व स्तर पर 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और थर्ड COP21 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत इन तीनों का सिग्नेटरी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दृष्टि से ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जोर आपदा के पश्चात रिस्पांस पर ही नहीं बल्कि आपदा के जोखिम को कम करने पर है।
जैसा कि होना भी चाहिए। अगर रिस्क को कम करना है तो इंसान की गतिविधियों से क्लाइमेट चेंज नहीं हो, यही आवश्यक है। इसी प्रकार विकास और प्रगति, जो स्वयं अपनी जगह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, आम आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ऐसे विकास से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो, यह भी आवश्यक है। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते एक कड़ी के भाग हैं और किसी एक उद्देश्य, उदाहरणार्थ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पाने हेतु अन्य दो उद्देश्यों को पाना भी अत्यावश्यक है। इस महत्वपूर्ण इंटरडिपेंडेंस की महत्ता को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत ने इन समझौतों को क्रियान्वित करने हेतु नई दिल्ली में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया था। इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एशिया रीजनल एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया गया था। इसी क्रम में इस 2 दिन की NPDRR की बैठक में सभी सदस्यगण एवं एक्सपर्ट्स आपदा के रिस्क को कम करने हेतु इसके विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन पर पूर्ण रूप से विचार कर वर्ष 2017 से लेकर 2030 तक का एक्शन प्लान बनाएंगे। आपदाओं के रिस्क को कम करना अब हमारे लिए चॉइस नहीं है, बल्कि यह एक अहम जरूरत भी है। मुझे याद है कि वर्ष 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन में करीब 10,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी और अरबों रुपयों की आर्थिक हानि भी हुई थी। और उसके पश्चात वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकंप और वर्ष 2004 में आई सुनामी ने देश को झकझोर दिया था। तब से लेसन्स लेते हुए भारतवर्ष में आपदा प्रबंधन के अप्रोच में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। देश में संस्थागत एवं योजनाबद्ध तरीके से आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, NDRF, NDMA और NIDM का गठन महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वर्ष 2013 में प्रथम नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का गठन किया गया था। विश्व स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भारत ने अपना योगदान दिया है। वर्ष 2015 में जब जापान में सेंडाई फ्रेमवर्क पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि आपदा के रिस्क को कम करने में सरकार के साथ साथ अन्य संगठनों की भूमिका ही उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी कि सरकार की है। सेंडाई फ्रेमवर्क की केवल 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो इनमें आपदा से होने वाले मृत्यु, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या तथा आर्थिक नुकसान को कम करना भी शामिल है। डेवलपमेंट के विभिन्न योजनाओं को बनाते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन सभी फैक्टर्स को कम करने में कैसे मददगार साबित होंगे। हम लोग यह सुनकर पले बढ़े हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विश्व के कई देशों ने इसे धरातल पर करके भी दिखाया है। भारतवर्ष भी इस प्रयास में पीछे नहीं रहा है। मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। पहला, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि विश्व का शायद सबसे बड़ा इस तरह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने जिन तटीय राज्यों में अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ किया है, स्थानीय स्तर पर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हैं, वहां पर चक्रवातों से होने वाली मृत्यु दर को हम 95% तक कम करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा, हमारे पर्वतीय इलाकों में भूकंप आने के बाद जो पूर्ण निर्माण हुआ है और जहां जहां भूकंप अवरोधी मकान बनाए गए, वहां भले ही इन मकानों की लागत 8 से 10% अधिक रही है, लेकिन भूकंप की प्रबल संभावना वाले इन इलाकों में
इन मकानों को बाद में आने वाले भूकंपों से न के बराबर क्षति हुई है। हम ये कह सकते हैं कि हर 1 रुपये की अतिरिक्त लागत से लगभग 10 रुपये की बचत हुई है। भारतवर्ष भी इस प्रयास में पीछे नहीं रहा है। मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। वर्ष 2001 में आए गुजरात के भूकंप के पश्चात जो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए कदम उठाए गए, उसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में पहचान मिली है। इसके लिए गुजरात सरकार को यूएन सासाकावा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यहां तक कि इसके फलस्वरूप सेंडई फ्रेमवर्क में भी बिल्ड बैक बेटर को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2013 एवं 2014 में आए साइक्लोन फाइलिन एवं हुदहुद में हमने नुकसान को काफी कम करने में कामयाबी हासिल की है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनमें मृतकों की संख्या क्रमशः 42 एवं 24 रही है, जबकि इसी से कंपेरेबल उड़ीसा के 1999 के सुपर साइक्लोन में करीब 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाने का अनुरोध किया है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के रिस्क को कम करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने का अनुरोध किया है। मुझे बताया गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा पशुधन की सुरक्षा के लिए लाइव स्टॉक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है, जो विश्व में अपने तरह का वह पहला प्रयास है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी कुछ सराहनीय व अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन शेल्टर का निर्माण, सेल इन एम्बार्कमेंट्स का निर्माण, मजबूत डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का केंद्र एवं राज्य स्तर पर गठन तथा कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग इस दिशा में उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम है। इन उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हो पूरी तैयारी तो आपदा नहीं है भारी। अतः हम सभी को मिलकर आपदाओं के रिस्क को कम करने के लिए पहले से ही पहल करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने AMCDRR 2016 के दौरान अपने उद्बोधन में 10 सूत्री एजेंडा पॉइंट्स का जिक्र किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करते हुए भविष्य के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। इन कार्य योजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक व्यवस्था की रूपरेखा की संरचना पर भी गहन विचार विमर्श किया जाना यह अपेक्षित है, ताकि हमें इस बात का पता चलता रहे कि हम इस दिशा में कितना प्रयासरत हैं और इसमें हमने साझा रूप से कितनी सफलता हासिल की है। भारत ने आपदाओं को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। इस क्रम में नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ भारत ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ईस्ट एशिया क्षेत्रों में भी अपना सहयोग देता रहा है। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन हेतु विशेष सैटेलाइट दक्षिण एशियाई देशों के लाभ के लिए पिछले सप्ताह प्रक्षेपित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में हमारे देश का नाम एक अग्रणी देश के रूप में पुनः स्थापित हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस बैठक के पूर्व महत्वपूर्ण विषयों पर 14 प्री इवेंट्स NDMA एवं NIDM द्वारा आयोजित किए गए, जो कि इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। इन चर्चाओं में स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण, इंक्लूसिवनेस, विमेन एम्पावरमेंट एवं नेशनल प्लान आदि मुद्दों पर गहन विचार विमर्श कर सिफारिश की गई है, जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में समाज के वल्नरेबल कम्युनिटी पर विशेष एक्शन प्लान बनाने हेतु भी मैं अपील करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी। अभी पिछले सप्ताह की द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक कैप्शन
डेथ इज इनएविटेबल बट ए बैड डेथ इज नॉट ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसका तात्पर्य है कि मृत्यु को तो हम रोक नहीं सकते, परंतु आपदा से होने वाली असामयिक मृत्यु को रोका जा सकता है। परिवार के एक सदस्य की असामयिक मृत्यु से संपूर्ण परिवार तहस नहस हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिवेंटिंग द प्रिवेंटेबल डेथ्स की दिशा में पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी का ध्यान नेशनल प्लान की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2016 में रिलीज किया है। इस प्लान का उद्देश्य भी भारत को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना तथा जान और माल के नुकसान में कमी लाना है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजास्टर से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अपनी कटिबद्धता को दोहराते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राज्यों के प्रयास को सप्लीमेंट करने हेतु एसडीआरएफ की समग्र निधि को जो 35,580 करोड़ रुपया 2010-15 से बढ़ाकर 2015-20 की अवधि के लिए 61,220 करोड़ कर दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं डिजास्टर रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास, कृषि सिंचाई योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आदि के साथ डिजास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम्स की सही सिनर्जी स्थापित की जाए। विकास एवं आपदा प्रबंधन में एक गहरा रिश्ता है। सही विकास जो रिस्क को कम करे, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के साझा प्रयास से ही रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, उसकी सहायता से हम इस बड़ी चुनौती का बड़ी ही आसानी से सामना कर सकेंगे। डिजास्टर रिस्क डायनेमिक है। कल का रिस्क आज की रिस्क से भिन्न हो सकता है, अतः भविष्य की रूपरेखा उसी के अनुरूप फ्लेक्सिबल बनाई जाए, जिसमें बदलाव को एडॉप्ट किया जा सके। देवियों एवं सज्जनों, मैं बैठक में आए आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए बैठक की सफलता की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी संगठित रूप से देश को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य देने का भरोसा दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अब हम आग्रह करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट श्री विपिन मलिक से कि कृपया आभार प्रकट करें। Honorable Union Home Minister, Honorable Ministers from the Union and States, Honorable Members of Parliament, respected Additional Principal Secretary to the Prime Minister, respected Home Secretary and members of NDMA, respected secretaries, representatives from state and central government, representatives of local self-government institutions, scientific and academic institutions, international organizations, NGOs, corporate sector, media, ladies and gentlemen. It's my privilege to conclude the inaugural meeting of NPDR and thank the dignitaries and also to the esteemed participants and delegates. At the outset, let me mention that no word of thanks would be enough to acknowledge the high level of commitment of Honorable Home Minister and both the Honorable Minister of States. Together, they have created a team MHA that has earned a name beyond the frontiers and high seas. On behalf of the participants and organizers, I convey our sincere gratitude to Honorable Sri Rajnath Singh Ji for providing a strong and inspiring leadership and guiding us at every step.
I also thank Honorable Minister Dr. Harshvardhan for his gracious presence. Sir, your unstinted support has encouraged us in our collective endeavor. I thank Honorable MOS Shri Kiren Rijiju for his continuous professional guidance. Sir, with your continued support and leadership, our fellow citizens will soon be better prepared to meet the emerging disaster-related challenges. I also convey my gratitude to all the members, all the honorable ministers of the Union and states for sparing their valuable time in spite of their busy schedules. We are grateful to Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to the Prime Minister, for his invaluable presence. I thank you, sir, for your deep interest, sustained commitment, and continued support to all DRR initiatives. We are also grateful to our respected Secretary, Sri Rajiv Maharshi, for his strong leadership and sustained encouragement to achieve perfection in all our endeavors. I thank all distinguished guests for their overwhelming participation. At last, I would like to place on record my deep appreciation for the great job done by officials of my ministry, Department of Space and Earth Sciences, NDMA, NIDM, NDRF, ITDC, and staff of Vigyan Bhavan who have done the extra mile to ensure that this meeting becomes a memorable affair. I would like to thank the members of both print and electronic media for their unwavered support in all our initiatives. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद श्री बिपिन मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में इनॉग्रल फंक्शन में पधारने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हृदय से आभारी हैं माननीय आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण का और मंच पर सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप सभी चाय पर पधारें। 11:15 से हॉल नंबर 2 और 3 में माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय राज्य मंत्री गणों का सत्र शुरू होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। प्लीनरी सेशन 11:30 पर यहाँ पर शुरू होगा। टॉपिक होगा नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई एंड बियॉन्ड। कृपया ज़रूर पधारिएगा। फिलहाल चाय पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस हॉल में 11:30 पर नेक्स्ट टेक्निकल सेशन शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।